This is ISO Market, your weekly deep dive into technical and fundamental analysis. For the next 45 minutes, we are going deep, no fluff, no gut feelings, just the data and the levels. So, the first pair we have is AOD USD, weekly time frame bullish, now daily time frame bullish, 4 hour time frame higher high, higher low, higher high, higher low, lower low, bearish, over time frame bullish. Next pair is GBP USD, weekly bullish, daily bullish, but 4 hour bearish, weekly bullish, daily bullish, 4 hour bearish. Now we have LZD USD, weekly bullish, daily time frame also bullish, but the 4 hour time frame indicate bearish. High, high, low, lower, high, lower, low, lower, high, lower, low. So, guys, basically USD के अगेंस्ट जो पेयर है सबका ट्रेंड एकदम सेम पैटर्न में है अभी के अभी तक जितने भी पेयर्स मैंने देखे ला यूरो USD वीकली टाइम फ्रेम बुलिश डेली टाइम फ्रेम बुलिश 4 hour टाइम फ्रेम bearish same pattern. ADCHF quickly indicate bullish. Now daily time frame indicate higher high, higher low, higher high, lower low, higher high, higher low, higher high, higher low, bullish. 4 hour time frame higher high, higher low, higher high, lower low, lower high, low, high, higher low, lower high, lower low, bearish. Price need to change the 4 hour trend. Then we have CAT CHF. Low, 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 bearish. It's a very strong weekly support by them. It's a very strong weekly support. Daily time frame bearish. 4 hour time frame bullish. Low, low, high, high, low, high, low, high, low. Then the next pair we have is Euro CHF. Weekly trend is bearish. Daily also bearish. Weekly bearish. Daily bearish. 4 hour time frame. 4 hour lower low, lower high, lower low, lower high also. Now JVP CHF. High, low, lower high, lower low, lower high, high low, higher high, lower low. Okay. Bearish on daily time frame. It's a high low area. So lower high, high, low, high, 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 lower high, lower low, lower high. Price break this level means that price is now bearish. Lower low, lower high. Daily time frame bearish.
अब 4 hour time frame. Hello, hi, hello, 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 hi, hello, but where is 10 degrees Celsius? Weekly time frame. Oh, hello, hi, 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 hello, hi, hi. Weekly time frame bullish. Daily time frame. Hi, hi, hello, hi, hi, hello, 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 hi, hi, bullish. 4 hour time frame. Left shoulder head, right shoulder pattern. Right shoulder needed. Trend basically indicates high, low, low, high, low, low, high, high, low, high, high, low, high, high. Bullish. Low, 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 high, low, low. Daily time frame. High, low, low, high, low, high, low, high, 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 low, high, high, low, low, high, low, 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 high. Bullish. Low, low, high, high, low, low, high, high, low, low, high, high. Bullish. Now, UD CAD. Strong weekly resistance. A very strong weekly resistance. यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेल आ सकता है शाम से. सो अभी के लिए प्राइस वीकली कंडीशन डेली बुलिश या 4 hour bearish. High low, high high, lower low. Nice one. पर 4 hour EMA अगेंस्ट अगर प्राइस जाए ना तो मेरा यहाँ पर एक शॉर्ट मूव बन सकता है. I want to take a counter trend trade here. I like this type of position by the way. It's a very strong weekly resistance. तो इधर से एक स्ट्रॉन्ग सेल का चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रीवियसली मार्च को जनवरी 2023 और 2022 में सेल यहाँ आया है यहाँ से. उसके बाद ये 2026 में आ सकता है तो देखा जाएगा. द नेक्स्ट पेयर इज यूरोकैड. वीकली हाई 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 लो हाई हाई लो लो हाई लो लो हाई लो लो हाई लो लो हाई 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 लो हाई 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 लो. बुलिश. and lower low lower high high low lower high lower low lower high high low high 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 low high high lower low high 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 low high high lower low. Bearish. 4 hour time frame. High 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 low lower high same low high 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 low high 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 low high high lower low. Bearish. Then we have NZD CAD. Weekly bullish. Daily bullish. 4 hour time frame. High 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 low low high low low high 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 low low lower high. Weekly bullish, daily bullish, 4 hour bearish.
Now we have Ginty Cat. Low, low, high, 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 low, higher, high. Weekly bullish. Daily high, 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 low, high, high, low, low, high, high, low, high, 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 low. Bullish. High, high, low, high, high, low, 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 high, low, low. Now use the cat. Weekly bullish. Weekly, sorry. Weekly bearish. Daily bearish. 4 hour also bearish. So तीनों पेयर bearish है. Then AUDJPY. Oh man, goodness. Weekly bullish. Daily bullish. 4 hour, 10, high, 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 low, low, high, high, low. That. Any kind of bullish. So weekly, daily, and 4 hour time frame. तीनों टाइम फ्रेम बुलिश है AUDJPY में. ताकूंगा तीनों बार नहीं लिखूंगा आगे एक ही चीज. हाँ खत्म कर लिया. NZJPY. Weekly bullish. Daily bullish. 4 hour bullish. Same pattern. EURJPY. Weekly bullish. Daily low. Oh. Weekly bullish. Daily bearish. And 4 hour bullish. अगर डेली इधर बेरिश होता मतलब बुलिश होता तो एक बहुत ही अच्छा चांस था. बहुत ही अच्छा चांस था. लेकिन है प्राइस को इस जोन को एडजस्ट करना पड़ेगा. उसके लिए 4 hour का ये लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर है. जैसे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आ सकता है. और ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ये बस 4 hour के ऊपर बेस करके बना हुआ है. ना ही डेली और ना ही वीकली. Let's move. Next pair is your USDJPY. High, low, low, high, lower, low, weekly bearish. Daily, high, low, lower, high, bearish. 4 hour time frame. Lower, low, lower, high, lower, low, lower, high, higher, low, higher, high, bullish. Now, Jenny to JPY. Weekly bullish. Daily, now, low, high, lower, low, lower, high. डेली बुलिश है या बेरिश. लाइन चार्ट में देखे तो बेरिश है.
So high, low, high, price के नीचे closing touch by low means bearish. So weekly time frame bullish, daily time frame bearish, and 4-hour time frame bullish with a strong left shoulder head and right shoulder. Now we have USJVP weekly bearish, daily lower low, lower high, and low home. Yes. Weekly and daily bearish. 4-hour lower low, lower high, high, low, high, lower low, lower high, bearish. मुझे लगता है 2 ओवर में एक लेफ्ट शोल्डर या 2 ओवर में एक लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर पैटर्न दिखने को मिल सकता है. राइट शोल्डर देन अ स्ट्रॉन्ग पुश, बड़ा चांस है. उसके बाद TOD NZD quickly bullish, daily high 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 low, high high, lower low, lower high, high low, lower same high, lower low. So daily time frame bullish, sorry, weekly time frame bullish, but daily time frame bearish. Now 4-hour time frame. Okay, cool. 4-hour time frame is also bullish. Then we have Euro NZD. High 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 low, high high, high low, high high, then high low, lower high, high low, lower high, lower low. Weekly time frame bearish. Daily time frame bearish. For the high, low, high, high. 4-hour time frame bearish. Now, JVP density, high, 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 low. So very messy chart. High, low, low, high, high, low, high, high, lower, low. Okay. Daily bearish. 4-hour bearish. Now your AOD, weekly bearish, daily bearish, 4-hour lower low, lower high, high low, high, high, low, bullish. Now we have JVP AOD, weekly bearish, daily bearish, 4-hour lower low, lower high, high low, high high, high low, bullish. So हमारा ट्रेंड एनालिसिस जो था हर पेयर के लिए वो खत्म हो चुका है अभी के लिए. So guys, we just completed our trend analysis. तो अभी हम लोग ट्रेंड अलाइनमेंट के ऊपर अपने रेड लिस्ट को चूज करने वाला है. मतलब कि जैसे AOD USD में अभी वीकली और डेली टाइम फ्रेम सिंक है, दोनों ही बुलिश है, तो इसलिए हम इस पेयर को रेड लिस्ट में ऐड करने वाले हैं. अगर डेली और 4-hour टाइम फ्रेम सिंक हो तो ही हम ऐड करेंगे. पर अगर कुछ इस तरीके का हो कि वीकली बुलिश है, डेली बेरिश है, फिर 4-hour बुलिश है,
तो हम ऐसे पेयर को सिंक, जो पेयर सिंक नहीं है, हम उसको ऐड नहीं करने वाले हैं। हम एक ही ट्रेंड को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर AUD USD डेली और वीकली में सिंक है, तो हम इसको ऐड करने वाले हैं। उसके बाद GBP USD सेम, NAD USD सेम, Euro USD सेम। नाउ AUD CHF वीकली डेली सिंक है, CAD CHF वीकली डेली सिंक है, Euro CHF, GBP CHF, NGD CHF, USD CHF, AUD CAD, Euro CAD weekly, okay, USD CAD, GBP CAD, USD CAD, AUD JPY, NZD JPY, Euro JPY नहीं, डेली टाइम फ्रेम 4 आवर के साथ और वीकली के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं है। USD JPY, JPY JPY 50, Euro JPP या AUD NZD या Euro NZD, JP NZD, Euro AUD, JP AUD। सो अभी हम लोग आने वाले हैं रेड लिस्ट में सिलेक्ट करने। इस वीक हम कौन से पेयर को क्रिएट करने वाले हैं। फर्स्ट it's a very strong weekly resistance, by the way. So I want to sell this one. If price break and retest here, if अभी के लिए जब चांसेस है वो है कि कोई चांसेस नहीं है, स्टिल वांट टू वीकनेस पेयर को छोड़ता है। JBP USD, चांसेस बहुत कम है। प्राइस अगर इस जोन को रिटेस्ट करेगा देन यहाँ से लॉन्ग पुश आ सकता है, चांस है। उसके बाद है NZD USD, दूर दूर तक मुझे कोई एरिया पे नजर नहीं आया कि बहुत लंबा पुश दे चुका ऑलरेडी। देन Euro USD weekly, daily, find the area of interest here. Resistance, 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 chance error, then AUD CHF, bullish indication, resistance, resistance, what are the resistance, but what about time frame variation, तो हमको वेट करना पड़ेगा। लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर, हमको इधर बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। कब प्राइस ट्रेंड को चेंज करेगा, मेरे ख्याल से लगता है ट्रेंड चेंज ही है, क्योंकि प्राइस हायर हाई, वो लो, वो हाई, lower low, higher high, higher low. I think प्राइस जब इस जोन को ब्रेक करेगा देन आई एम रेडी टू एंटर इन दिस पोजीशन। और एक इधर गया इस जोन को, आई एम रेडी टू एंटर इन दिस पोजीशन। बट ये AOI सही करना पड़ेगा, आई डोंट थिंक। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया है, पहली बार सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, पता नहीं।
प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। एक 2 आवर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है, हेड शोल्डर हेड हेड शोल्डर। हम इसी के ऊपर बेस करके इस पेट के ऊपर बने हुए हैं। तो अगर प्राइस इस जोन को अगर फिर से रेडियस चलेगा देन एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पर। देन वी हैव कैट सीचर, और कैट सीचर में मेरा जो ख्याल है वो है कि वेरी गुड POI। प्राइस को इस जोन को जाकर रिटेस्ट करना पड़ेगा। रिटेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर एक सेल मूव के लिए प्लान कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत ही बड़ा मूव है वैसे। और अभी के लिए प्राइस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीकली एरिया पर है अभी के लिए। तो मेरा मैं सोच रहा हूँ अगर प्राइस मुझे यहाँ पर एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी दे देगा रिटेस्ट करेगा जोन को पूरा टाइम फ्रेम में, सो आई प्लान टू टेक अ लॉन्ग मूव until the price retest दिस एरिया। अगर प्राइस यहाँ पर एक छोटा सा रिटेस्ट करेगा पूरा टाइम फ्रेम में, देन मैं इस मूव को कैप्चर करने के लिए एक लॉन्ग मूव यहाँ से ले सकता हूँ। काउंटर ट्रेंड नहीं होगा क्योंकि काउंटर ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा, पर ओवरऑल के हिसाब से सही होगा शायद। shoulder head right shoulder nice ball, because it's a very strong daily and weekly support zone. Work 20 October November मैं बहुत अच्छा वर्क किया है जोन। तो प्लान यही रहेगा। देन वी हैव यूरो सीचर। यूरो सीचर के लिए अभी के लिए कोई स्ट्रॉन्ग जोन मैंने देख पाया हूँ अभी के लिए। आई थिंक यूरो सीचर अभी ऑल टाइम लो पे है। प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे के लिए नहीं देता है यहाँ पर। प्राइस जोन को एडजस्ट करेगा देन मैं प्लान कर सकता हूँ सेल मूव के लिए। देन वी हैव jail procedures, support resistance, support break resistance। अगर एक सेल का चांस है तो प्राइस को इस को रेजिस्ट करना पड़ेगा। देन चांस है, इधर चांस है। You can easily plan a sell move here easily। अच्छा एक्सट्रीम 1 भी है, बस तो 2 के अबव है, बस 3 अराउंड है। देन वी हैव एनजेलिस फीचर्स। अभी तक हमने सीएचएफ का अगेंस्ट जो प्लेयर देखा वो सारे न्यूज थे, पर बस एनजीडी और एओडी ये दो प्लेयर ही सीएचएफ के अगेंस्ट बुलिश है अभी के लिए। सो एनजीडी सीएचएफ में मुझे कोई एओआई अच्छा नहीं नजर आ रहा, तो हम इस शर्ट को छोड़े अब। देन वी हैव यूएसडी सीएचएफ, another all time low I guess, yeah all time low। प्राइस को इस को रीटेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इस पर को ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। काउंटर टेंटेड यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी बन ही नहीं रहा, so we give this trade also। Then we have AOD CAD, weekly bullish, daily bullish, पर हम करने वाले हैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड। अगर पॉसिबिलिटीज मिली तो काउंटर ट्रेंड ट्रेड मैं रीजन की ब्रेकडाउन करने वाला हूँ वैसे। तो हम डेली और वीकली में बुलिश हैं। ये जो AOD CAD अभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मतलब सप्लाई जोन पर बेस्ड है। डेली टाइम फ्रेम में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क किया है हमेशा।
तो मेरा जो प्लान रहेगा वो है इधर कि ये 4 आवर लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर पैटर्न जब इस ईएमए को ब्रेक करेगा, मतलब अभी के लिए ये एक लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर जब क्रिएट करने के बाद प्राइस जब इस ईएमए को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जब रिटेस्ट करेगा, उसी रिटेस्ट पे मेरा जो है एंट्री बनेगा और मेरे रिस्क रिवार्ड बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई पर है। और जब ये एक सेल अपॉर्चुनिटी देगा तब प्राइस बहुत जल्दी इस पूरे एरिया को रीटेस्ट करेगा, जैसे कि पहले हुआ है। मेरी रीज़न हिस्ट्री हमको सब बताती है। जैसे यदि अप्रैल 2022 में हुआ था, ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद प्राइस बहुत ही जल्दी इस रेजिस्टेंस जोन से बहुत स्ट्रोक से आया था और प्राइस पूरा नीचे। उसके बाद जनवरी 2023 में हुआ था, फरवरी में सेम टाइम 2023 में हुआ था, अभी 2026 में हो सकता है, फरवरी में ही था। बहुत स्ट्रॉन्ग पुश आया था बेसिकली। और लेट्स सी क्या होता है। देन वी हैव यूरो कैड। AOI स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस सपोर्ट 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 रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग AOI। प्राइस सभी जोन को रिड्यूस करेगा, देन प्लान करूँगा सेल के लिए। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग AOI। और डेली टाइम फ्रेम में जैसे कि यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर, मतलब जिसे दिखा नहीं रहा, 4 आवर में क्लियरली विजिबल है लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर रिटेस्ट करेगा, देन हम ट्रेड लेंगे। उसके बाद है NZD कैड। AOI नहीं है, सोलो ट्रेड। JP कैड बुलिश इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट। सो वी कैन प्लान अस लॉन्ग हियर। पर अभी के लिए 4 आवर इंडिकेट बेरिश है, हमको वेट करना पड़ेगा 4 आवर का ट्रेंड को चेंज होने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर एक लॉन्ग मूव ले सकते हैं, चांस है। Then we have USD CAD। USD CAD only तभी पॉसिबल है जब इस जन को अगर टेस्ट करेगा, देन only we can sell USD CAD, otherwise no chance। इसके बाद हमारे पास है AUDJPY। टाइपिंग मिस्टेक, ये बुलिश होने वाला था, मैंने बेरिश लिख दिया। तो ये ऑल टाइम हाई पर है, कोई चांस नहीं है इधर। LZDJPY with the same mistake, bearish bullish लगाइए, चांस। वो चांस एक चांस है, पर रिस्की है कि AOI बहुत ही समय पहले 2024 2023 के एंड में और 2025 के एंड में वीकली में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का वर्क किया है, सपोर्ट की तरह ज़्यादातर नहीं किया है। सिर्फ प्राइस लीडर्स दिस एरिया एंड चेंज द ट्रेंड ऑल्सो। तो यहाँ पर एक लॉन्ग मूव हो सकता है, चांस चांस मुझे नहीं लगता है, पर हो सकता है। देन USDJPY क्या वेरिएशन AOI पर ढूंढना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग AOI। ये AOI नहीं चलेगा।
नो चांस। देन यूरो जेबीपी, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क किया है हमेशा वीकली टाइम फ्रेम में, बट अभी ट्रेंड चेंज है। रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पर एक रिटर्स के बाद एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, चांस है बिकॉज 2 आवर टाइम फ्रेम में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत क्लियरली विजिबल है। लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर, ये के बाद हम ट्रेड ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर। पर ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड पॉसिबल नहीं होगा। फिर से प्राइस फिर से बायर्स इधर से घुसेंगे तो प्राइस में ट्रेंड चेंज होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। वही शुरू मिल सकता है, चांस से मिल सकता है, पर इधर से सेलिंग प्रेशर ज़रूर है। देन वी हैव AUD LCD, AUD LCD bearish, क्लीन बेरिश से पर हमको इस जोन को रिड्यूस करना पड़ेगा। लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर भी है, और सपोर्ट एंड 1 टाइम सपोर्ट देन ब्रेक एंड रेजिस्टेंस। तो 4 आवर लेफ्ट शोल्डर हेड भी है, राइट शोल्डर की टाइम रिटर्स करने के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। Then we have Euro LCD, इंडियन बियरिश साइन कर रहा है, पर यहाँ पर कोई चांस नहीं है वीकली टाइम फ्रेम में भी। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का इंडिकेट है प्राइस, हालांकि डेली में भी है वही सेम सपोर्ट। सो इफ अगर यहाँ पर प्राइस इस 4 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा भी बदलाव देती है वो, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक काउंटर ट्रेंड हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है डेली में, तो if price break this level in 4 hour time frame, then we can take a long here 2 hour left shoulder head. If price close ऊपर देगा तो ये हेड बन जाएगा। देन उसके बाद ब्रेक करने के बाद प्राइस रिड्यूस करेगा हाई शोल्डर में, उसके बाद हम एंटर करेंगे इस ट्रेड में। चांसेस है ट्रेड बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेली सपोर्ट है। सो मैं सपोर्ट को रेड मार्क करूँगा स्ट्रॉन्ग लेवल्स को, तो चांसेस है काउंटर ट्रेंड है फिर भी। और इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस इस इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, और टारगेट सेम रहेगा, इतना ही रहेगा। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज होता है तब, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। और एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल भी है शायद, आई थिंक 1.97 या 1.97 स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल भी है। उसके बाद हमारे पास है JBP NZD, अगर टाइम फ्रेम वो बेरिश है, अभी प्राइस को रिजस्ट करना पड़ेगा एक बार।
देखना पड़ेगा प्राइस रिड्यूस करता है कि नहीं। सपोर्ट है अभी के लिए। सो अगर प्राइस हमको अगर रिड्यूस करेगा देन यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकता है हमको जी, क्योंकि एंजरिंग मेरी सेम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इधर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्रीवियसली प्राइस 2025 में यहाँ से मूव किया है सेम यूनिवर्सिटी की तरह। वीकली सपोर्ट ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्राइस को वैसे भी जोन को अपडेट करना ही पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी काउंटर ट्रेंड मिल सकता है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज होता है तब सेम मूव है, पूरा सेम, बिल्कुल सेम प्लानिंग होने वाली है। तो इधर पे भी हम एक काउंटर ट्रेड का प्लान करने वाले हैं, तगड़ा ट्रेड होने वाला है, 2 का प्लान करेंगे। उसके बाद यूरो AUD हमको इधर पे भी एक शॉर्ट का ट्राई करना पड़ेगा। शॉर्ट के लिए नो चांस, कोई चांस नहीं इधर। देन JBP AUD bearish no AOI, no chance, all time low, not all time low, strong support area, strong support area। उसका कैलकुलेशन करते हैं इधर, a very strong resistance support and weak area। बट मैं जिस सपोर्ट को लेकर चलता हूँ उसके लिए डेली में, मंथली में देखते हैं एक बार, नहीं डेली में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो क्या है। तो एक और काउंटर ट्रेड इधर आ सकता है। 4 आवर ऑलरेडी बुलिश ही है, बस थोड़ा सा पैटर्न चाहिए हमको कोई एक, and we can plan another one counter trade। ना लंबा नहीं जाएगा, छोटा सा होगा इस बार, ना बड़ा ट्रेड हम प्लान नहीं करते। मैक्स स्टॉप लॉस अगर 50-60 पिप्स होगा देन वी कैन ट्रेड, अदरवाइज वी डू नॉट टेक ट्रेड्स। अगर स्टॉप लॉस 70 से ऊपर चला गया तो उसमें कोई फायदा नहीं है। चलो AUD USD में कोई प्लान नहीं बना, JPY USD में कोई प्लान नहीं हुआ, तो हुआ है NZD USD नो प्लान, Euro USD CHF Euro CHF Indian CHF NZD CHF no opportunity, CHF no opportunity, AUD CAD counter trend, Euro CAD hyperbole trade, NZD CAD no opportunity, JPY CAD little opportunity, USD CAD देखना पड़ेगा, AUD JPY no opportunity, NZD JPY USD JPY no opportunity, Euro JPY nothing है, Euro NZD, then Euro NZD, then JPY NZD, then JPY AUD। तो हाई पावर ट्रेड सेटअप में हमको से हटा देते इसको उनको। आई डोंट थिंक वो रिलीज करने के बाद फिर से पोस्ट आएगा वहाँ से। फर्स्ट पेयर कैट सीचर काउंटर ट्रेंड भी है। तो हाई पावर ट्रेड में हमारे पास है यूरो कैट सीचर, AUD सीचर, यूरो सीचर, JPY सीचर,
AOD CAD काउंटर प्रिंट थ्रेड है, इसको नीचे आते हैं, देन JP CAD, USD CAD, NZD JPY हटा देता है इसको, Euro CHF, sorry USDP, AOD CAD, AOD NZD, plus strong, पैटर्न को आपको पूरा डाउन और यहाँ पर हमारे काउंटर प्रिंटर्स जो कि है AOD CAD, Euro NZD, JPL NZD और JPP AOD के ऊपर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को बहुत पहुंचा देना, शेयर कर देना। और अगर आप लोगों को QT Funded का अकाउंट परचेज करना है तो मैं एफिलिएट कोड यूज़ करना। और आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।